انتہائی قابل احترام علماء کرام اور جمیع برادران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، جس نے آج اس مقام پر ہمیں نبی محتشم آبی عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں بلا تفریق اپنے تمام پیر بھائیوں کو اور اپنے تمام تعلق داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ عظیم کام سر انجام دیا۔ یہ ایک تاریخی کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھر نہیں ہے، یہ دربار عالیہ بگار شریف۔ انگلینڈ میں، یو کے میں یہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ بگار شریف کا نشان ہے، اور اس دھرتی پر بسنے والے تمام پیر بھائیوں کے لیے عقیدتوں کا اور محبتوں کا مرکز ہے۔ میں تمام بزرگوں کو، تمام نوجوانوں کو، دوستوں کو اس عظیم کام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ جن احباب نے جس اعتبار سے بھی اس میں حصہ لیا، اللہ ان کی جان، ان کی عزت، ان کی آبرو اور ان کی زندگی سلامت ہو۔ فیاض بھائی نے میرے ابتدائی دورے کے دوران ہی جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو پابند کر دیا تھا کہ یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہم نے یہاں آستانہ عالیہ بگار شریف بنانا ہے، تو اس کا افتتاح کرنا ہے۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ پوری برطانیہ میں گھومے ہیں، لیکن یہ آج کی محفل میرے لیے ایک تاریخی محفل ہے، جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور میں اسے خوش بختی سمجھتا ہوں۔ بہت دور سے احباب تشریف لائے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے اور اللہ سب کے اس اخلاص اور للہیت کے اس رشتے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ حاجی صاحب، میں تو آج امید نہیں رکھتا تھا کہ یہاں موجود ہوں گے، لیکن لوٹن سے یہاں تک کا سفر طویل کر کے بیماری کے باوجود یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ آج کے اس خوبصورت دربار عالیہ کے اس مرکز میں بیٹھ کر ہم نے جو ختم خواجگان پڑھا، جو درود و سلام پڑھا، جو ذکر و فکر ہوا یا ہو رہا ہے، اس کی برکت سے ہی نصیحت۔ حضرات، وقت خاصا مختصر ہے اور کسی جمعہ دار تقریر کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ شعر مجھے بھی بہت آتے ہیں۔ میں احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ علماء سے دوڑے نہ سنا کریں، علماء سے حدیثیں سنا کریں، علماء سے قرآن کی آیات سنا کریں، علماء سے آیات کی تفسیر سنا کریں۔ آپ انہیں فرمائشیں کر دیتے ہیں اور وہ بھی شعروں پہ، میں جہاں بھی گیا ہوں یہی حال علماء کا ہے۔ تو علم کی کمی واقع ہوتی ہے کہ جب تقریر کا وقت جو ہے وہ ہم شعر و شاعری کی طرف کر دیں۔ یہ ایک ذوق کے لیے نعت ہوتی ہے تھوڑے مختصر وقت کے لیے، اور وہ ناخوان کا کام ہے، اور عالم کا کام ہے کہ وہ جو آیت پڑھے اس آیت کو سرکار کے فرمان کی روشنی میں لے کے چلے اور پھر لوگوں میں علم منتقل کرے۔ تقریر اپنی آوازوں کا جادو جگانے کا نام نہیں ہے۔ تقریر جو ہے وہ کوئی فن کا مظاہرہ کرنا نہیں ہے۔ تقریر اپنے مطالعے کو شیئر کرنے کا نام ہے، اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کا نام ہے، اور دوسروں تک پہنچانے کا یہ جو ذریعہ ہے یہ اتنا ضروری ہے، اتنا لازمی ہے کہ نسلیں اسی سے پھر پروان چڑھتی ہیں، اور ایک نسل اپنا علم جب دوسری نسل کو
फराहम करती है, तो फिर जिस डगर पर बाप चलता है उसी पर बेटा चल पड़ता है, जिस पर बड़े चलते हैं उसी पर फिर अगली नस्ल चलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हजरात मैं भी सोच रहा था कि कोई कलाम सुनाऊं और आप साहब से भी सुनूं, लेकिन वक्त जो है वो बहुत थोड़ा है, इसलिए ये चूंकि मिलाद की महफिल है, पहली बात मिलाद के बारे में सुन लें और फिर आस्ताने के बारे में सुन लें कि इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि बात वही करनी चाहिए जिसका मौका हो, मौका महल से बात करनी चाहिए। पहली बात यह है कि ये मिलाद की महफिल सजाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई मौका हो अहले सुन्नत का, हम उस वक्त महफिल मिलाद सजा लेते हैं। इससे बेहतरीन जिक्र कोई नहीं, इससे बेहतरीन रौनक कोई नहीं कि उम्मती बैठ के सरकार का जिक्र करें, इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाहिद जात है कि अल्लाह के बाद जिसके साथ हमारी दुनिया में भी उम्मीद वाबस्ता है, आखिरत में भी उम्मीद वाबस्ता है, सुभान अल्लाह, हुजूर की जात है। दुनिया में भी उन्हीं से हमारी उम्मीद वाबस्ता है अल्लाह के बाद, और आखिरत में भी उन्हीं के साथ वाबस्ता है। हज़रात हम तो उम्मती हैं, हम तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं, हमें अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहादत देते हैं, सुबह को देते हैं, शाम को देते हैं, दिन को देते हैं, रात को देते हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्तरखाने रहमत और आपका खाने करम इतना वसी है, इतना वसी है कि आपके आने से बाद की दुनिया तो यकीनन आपसे फैज़याब हुई है और होती रहेगी। जब आप अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो उस वक्त भी लोग उम्मीद लगाकर आपके दरवाजे पर बैठे हुए थे, उस वक्त भी उम्मीद लगा के। तवील वाक़यात का मौका नहीं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तुब्बा अबू कर्ब या अबू कुरैब, दोनों तलफ़्फ़ुज़ आए हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने पूरा वाक़या लिखा है और बहुत सी किताबों में तफसीर में मौजूद है। यमन का बादशाह, मैं उसे इख्तिसार से बयान करूंगा, उसका गुजर हुआ और चूंकि पैदल सफर होते थे, सवारियों पे होते थे, जानवरों की सवारी, जहां रात पड़ती थी वहीं पड़ाव करते थे। सफर के दौरान, और याद रखिए अभी फिरौन का जिक्र था, फिरौन किसी एक बंदे का नाम नहीं, औहदे का नाम है। उस जमाने में जो भी मिस्र का बादशाह होता था उसे फिरौन कहते थे, और जिसका मूसा अलैहिस्सलाम के साथ टाकरा था उसका नाम रामसेस था, जिसकी डेड बॉडी आज भी मौजूद है। रामसेस सानी, एक रामसेस पहले हुआ है, उसका कोई दादा परदादा, और एक ये हुआ है, ये दूसरा रामसेस है। तो जिस तरह मिस्र के बादशाह को फिरौन कहते थे, इसी तरह यमन के बादशाह को तुब्बा कहते थे। यमन का उस दौर का तुब्बा मैं सफर था अपने लश्कर समेत, अपने दानश्वरों समेत, अपनी रियाया समेत, अपनी कैबिनेट समेत मैं सफर था। तो दौराने सफर एक मकाम पर रात पड़ गई, तो उसने हुक्म दिया कि इस मकाम पर पड़ाव किया जाए, हम यहां पर रात बसर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। खेमे लगा दिए गए, लंगर का एहतमाम कर दिया गया। गुफ्तो शनीद बादशाह था, दानिश्वर बैठे थे, उलमा बैठे थे, उनके मजहब के, ये दाऊद अलैहिस्सलाम के तरीके पर था। जब रात बीत गई काफी और लोग अपने अपने खेमों में महवे आराम हो गए, तो उस वक्त ज़बूर के उलमा, तौरात और ज़बूर के उलमा वो इबादत में मशगूल हो गए। तवज्जो दीजिएगा और लज्जत लीजिएगा और अपनी किस्मत पे नाज कीजिएगा, रब का शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह की इनायत हम पर कितनी है। वो इबादत में मशगूल हुए, रात उन्होंने इबादत में गुजार दी।
दौरान इबादत उन्होंने देखा कि अनवारात और तजल्लियात की बारिश हो रही है। सुभान अल्लाह। एक नूर है जो बरस रहा है। वो लोग चूंकि दानिशवर थे और किताब के आलिम थे, वो आपस में क़याफा करने लगे कि ये क्या है। जब आपस में गौर किया और फिक्र किया तो उनमें से जो सीनियर तरीन थे बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि मैंने अभी गौर किया तो मुझे पता चला कि हमने वहां पर पड़ाव किया हुए जहां आखिरी नबी तशरीफ लाए, उस मकाम पे हम ठहरे हुए हैं, वहां पे हमने खेमा लगाए हुए हैं और मेरे आराम होने का इरादा कर रहे हैं, जो जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए हिजरत होगी, जहां आप तशरीफ फरमा होंगे, जहां आप जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारेंगे और आप अपने रब की बारगाह में जब हाजिर होंगे तो सुबह कयामत तक आपका रोजा इस मकाम पर बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। इसी कैफियत में, इसी सरशारी में रात गुजरी। जब रात गुजरी और फजर हुई, जो उनका इबादत का तरीका था वो उन्होंने किया, और फिर खाने पीने का जो रवाज था उसके मुताबिक वो सारे इकट्ठे हुए और बादशाह ने सबको बुलाया और कहा कितने बजे कूच करना चाहिए। तो वो जो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग आलिम, बुजुर्ग दरवेश, हर उम्मत में दरवेश हुए हैं, याद रखिएगा, हर उम्मत में अल्लाह वाले हुए हैं और हर उम्मत में दीन को जिंदा अल्लाह वालों ने रखा है। ये बात याद रखिएगा। शोर शराबा करने वाली बड़ी मखलूक हुई, लेकिन दीन की हकीकी रूह को जिंदा सिर्फ अल्लाह वालों ने रखा है, जिसे आज हम खानकाही निजाम कहते हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने अपने मशाइख के साथ अकीदत और मोहब्बत के उस रिश्ते को ऐसे निभाया कि यूरोप की दुनिया में भी आपने खानकाह मुजद्दिया बना दी है। ये इंशाअल्लाह ये खानकाह मुजद्दिया है। बादशाह ने जब कहा कि कूच का वक्त मुकर्रर किया जाए, सफर तवील है, तो वो जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने अर्ज किया कि बादशाह सलामत जान की अमान पाए तो अर्ज करें। तो कहा फरमाइए, आप बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा कि हम रात इबादत में मशगूल थे तो हमें इस जगह के बारे में ऐसा इंकशाफ हुआ कि हम यहां से जाना नहीं चाहते, आप हमें यहां रहने की इजाजत दें। बादशाह ने कहा वो ऐसा क्या इंकशाफ हुआ? उन्होंने कहा कि इंकशाफ ये हुआ कि हम उस मकाम पर बैठे हैं कि नबियों ने जिस आखिरी नबी की आमद की खबर दी है, वो जब तशरीफ लाएंगे तो उनका आखिरी दौरे जिंदगी यहाँ गुजरेगा और सुबह कयामत तक यही उनका रोजा बनेगा, रूए जमीन पर यहीं से उनका मजहब और दीन फैलेगा। मैं चाहता हूं कि मैं यहीं रहूं, हो सकता है मेरी मौजूदगी में आ जाए और मैं उनकी जियारत से मुशर्रफ हो जाऊं, मैं उनका दीदार कर लूं और शर्फ मुलाकात हासिल हो जाए। तुब्बा ने कहा जैसे आप चाहें। और लोग भी तैयार हो गए और अहले इल्म जो थे उन्होंने कहा हम भी यहीं रहना चाहते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया इनके लिए मकानात फौरी तौर पर तामीर किए जाएं। रवानगी मनसूख की गई, कारीगरों को हुक्म दिया गया और मकानात की तामीर शुरू होगी। फौरी तौर पर उनके लिए मकानात तामीर कर दिए गए और वो जो बुजुर्ग तरीन थे, एक मकान उनके लिए बनाया गया कि आपने यहां रहना है। जब मकानात तामीर हो गए, वो सारे अपने अपने मकानात में फरोकश हो गए, तो बादशाह ने कहा अब हम चल रहे हैं। लेकिन चलते हुए बादशाह ने एक रुका लिखा, एक खत लिखा तुब्बा अबू कर्ब की जानिब से मोहम्मद मुस्तफा के नाम। सुभान अल्लाह। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने ये बात लिखी और दीगर ने भी लिखी है, मुफस्सरीन ने लिखी है। सरकार की आमद से 1000 साल पहले, हम तो सरकार के दौर में जी रहे हैं ना, हम तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती की हैसियत से मौजूद हैं। हम तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के अजीम लोगों के दामन से वाबस्ता हैं। आप उसका अंदाजा कीजिए कि सरकार की आमद से पहले उसने रुका लिखा, बादशाह ने रुका लिखा। एक वो है जिसने कहा मैं यहां से जाऊंगा ही नहीं, और दूसरा बादशाही मजबूरी के सबब जाने लगा तो उसने रुका लिखा तुब्बा अबू कर्ब की जानिब से मोहम्मद मुस्तफा के नाम।
या मोहम्मद मैं आपके उन उम्मतियों में से हूं जो आपसे पहले गुजर रहे हैं, मैं आपके उन उम्मतियों में से हूं जो आपसे पहले गुजर रहे हैं। अगर मैंने आपको पा लिया तो मैं आपका कलमा पढ़ूंगा, अगर न पा सका तो मेरा ईमान भी कबूल कीजिएगा, कयामत के दिन मेरी सिफारिश भी कर दीजिएगा। मोहतरम आज़रीन गिरामी, से सरकार की आमद से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तुबा मदीना तैयबा के मज़ाफ़ात में बैठ के सरकार को रुका लिख रहा है। आप तो खुश नसीब हैं, आपको रुका लिखने की जरूरत नहीं, इधर दरूद पढ़ते हो, उधर मुस्तफा बख्शिश की दुआ मांगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर उम्मती दरूद पढ़ता है, उधर रोज़ा अनवर में जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बख्शिश की दुआ मांगते हैं और अल्लाह उस बंदे पर 10 रहमतें नाजिल करता है। सुभान अल्लाह। तो बाबू कर्ब ने रुका लिखा, उसे सोने के एक और चांदी के बनाए हुए एक डिबिया में उसे बंद किया। ये तरीका था बादशाहों के खत देने का, और उन बुजुर्गों को दिया और कहा आप यहाँ रहें, इस घर में आप रहें और ये रुका आप अपने पास रखें। अगर आपकी मौजूदगी में आखिरी नबी आ जाएं तो मेरा रुका उनकी खिदमत में पेश कर दें। सुभान अल्लाह। मेरा रुका आपकी बारगाह बेकस पनाह में पेश कर दें। आदरीन मोहतरम, रुका देकर बादशाह रवाना हो गए। बादशाह की भी कई नस्लें गुजर गई, 1000 साल का दौर बीत गया और फिर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मदीना पाक में ज़हूर हो गया। 1000 साल के बाद आप मक्का पाक में 12 रबीउल अव्वल की सुबह तशरीफ लाए और फिर 10 साल की जिद्दोजहद के बाद आप मदीना पाक की जानिब में सफर हुए और मदीना पाक में तशरीफ ले आए। मैं इख्तिसार के साथ आगे चलता हूं। जब तुबा की कैबिनेट का वो आलिम जिसने रुका दिया था, उसने कोई उम्मीद रखी होगी ना, उसका कोई एतकाद हुआ होगा ना। रसूल रहमत जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन कुबा में ठहरने के बाद मदीना तैयबा की तरफ जलूस आया। और याद रखिए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर जो हम जलूस निकालते हैं ना, ये बाद की बिदत नहीं है। जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुबा से मदीना तशरीफ लाए तो सहाबा उन्हें जलूस के साथ लेके आए थे। सुभान अल्लाह। और ये भी याद रखिएगा कि कुबा से मदीना तक का जुलूस तो बाद की बात है ना। उससे पहले जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम महवे हिजरत थे, मदीना तैयबा की जानिब महवे सफर थे, तो रास्ते में बहुत सारे नौजवानों ने मुहासरा करके पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि अहले मक्का ने इनाम रखा हुआ था। तो इनाम के लालच में वो जब आए तो सरकार के करीब पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें देखा। जब देखा तो उन नौजवानों की नजर सरकार पे पड़ी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नजर उन पे पड़ी तो नौजवान ठटक गए कि उन लोगों ने क्या कहा था कि वैसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, ये चेहरा तो इतना प्यारा है कि ऐसा बंदा रुए जमीन पे कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। बुरैदा असलमी काफिले के लीडर थे, गिरफ्तार करने आ रहे थे, खुद गिरफ्तार हो गए, मुसलमान हो गए सारे। अल मुख्तसर मुसलमान हो गए सारे। जब सारे मुसलमान हो गए ना, हजूर ने उन्हें दीनी तालीम दी जो उस वक्त तक नाज़िल हो चुकी थी। जब वो लौटने लगे तो बुरैदा असलमी ने कहा, ये कबीला असलम के थे, सारे नौजवानों से कहा कि यार पहले की बात और थी, अब तो हम इनके गुलाम बन गए हैं। अब ये जेब नहीं देखता कि हम इन्हें तन्हा छोड़ के चले जाएं, हम इन्हें काफिले के साथ मंजिल पर पहुंचा कर वापस आएंगे। और फिर वो काफिला चल पड़ा। जब कुबा के करीब पहुंचा ना तो बुरैदा असलमी ने कहा कि ये भी अच्छी बात नहीं है, अब लोगों को पता कैसे चले कि सरकार आ रहे हैं, कैसे पता चले, कोई अलामत तो होनी चाहिए। 10-20 उधर से आ रहे हैं, 10-20 उधर घूम रहे हैं, काफिले तो चलते ही रहते हैं, सरकार का काफिला कौन सा है
बुरैदा असलमी ने अपनी पगड़ी फाड़ी और अपने नेज़े के साथ झंडा बनाया। आगे आगे बुरैदा चल रहा था, पीछे पीछे आमना का लाल चल रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, दरबार आलिया बुगार शरीफ। हज़रात, वक्त ज्यादा न हो जाए, ये बिल्कुल घड़ी की तरफ नजर है। हमने सीखा ही साजिदुर रहमान से है, हमने सीखा ही हजरत ख्वाजा मोहम्मद याकूब से है। इसलिए वक्त की पाबंदी और सारे मामलात जो हैं हमें अपने मुर्शिद खाने से मिले और आदाब महफिल भी वहीं से हमने सीखे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम को लेकर सहाबा मदीना तैयबा में दाखिल हुए। हर किसी की ख्वाहिश थी कि हजूर मेरे घर में ठहरे, हजूर मेरे घर में ठहरे, हजूर मेरे घर में ठहरे। अब जाहिर है एक आम अच्छा बंदा किसी का दिल नहीं तोड़ता, तो जो सारी कायनात के लिए रहमत हो उसके करम का आलम क्या होगा, उनकी नर्म दिली का आलम क्या होगा। आपने फरमाया ऐसा करो, ये जो ऊंटनी की नकेल है ना, इसकी गर्दन के गिर्द बांध दो। ये मदीना तैयबा में जिस घर के सामने बैठ जाएगी मैं वही ठहर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, ये इस पे छोड़ दो, इस पे छोड़ दो। ऊंटनी की नकेल, उसकी मुहार वो बांध के छोड़ दी गई। ऊंटनी मदीना तैयबा की गलियों से गुजरती 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 जनाब अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के गेट के सामने आके बैठ गई। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये महज इत्तेफाक नहीं, ये अजल के सौदे हैं। ये रोज़े अजल रब्बे कायनात का इंतखाब है। ये महज इंतखाब नहीं कि यूके की सरजमीन पे यहां बैठ के मैं सरकार के नगमे अलाप रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं, ये रब का करम है, ये उसकी अता है, ये उसका फजल है। ये हमारी किसी काबिलियत की बुनियाद पर नहीं, ये उसके बरगज़ीदा बंदों की निस्बत की बुनियाद पर है। सुभान अल्लाह। उस निस्बत की वजह से है। जब ऊंटनी बैठ गई ना, तो सरकार ने पूछा ये घर किसका है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने आज के हजूर गुलाम हाजिर है। आप उतरे, अंदर तशरीफ ले गए। इसी तरह कोई कमरा था, सारे बैठ गए। जब सारे बैठ गए, जो भी बैठ गए, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैठ के सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू अय्यूब अंसारी, वो खत लेके आओ जो नस्ल दर नस्ल तेरे घर में मौजूद है। वो खत लाया गया। जब वो खत लाया तो आपने फरमाया अली पढ़ के सुनाओ। जनाबी अली ने पढ़ के सुनाया। इबारत ये थी कि तुब्बा अबू कर्ब की जानिब से मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम, या रसूलुल्लाह, मैं आपके उन उम्मतियों में से हूँ जो आपसे पहले गुजरे हैं। अगर पा लिया तो कलमा पढ़ूंगा, न पा सका तो ईमान कबूल कीजिएगा, शफात कर दीजिएगा। सरकार ने फरमाया गवाह रहो, मैंने तुब्बा का ईमान भी कबूल कर लिया है, क़यामत के दिन ज़बान भी कर दूंगा।